নমস্কার, আপনারা দেখছেন প্রিয় চিত্রের সাথী নিউজ। ভারতীয় রেলওয়ে মালগুদাম শ্রমিক সংঘ 1998 সাল থেকে রেলওয়ে পণ্য গুদামে কর্মরত শ্রমিকদের অধিকারের জন্য লড়াই করে আসছে। দীর্ঘ লড়াইয়ের পর শ্রম মন্ত্রণালয় ট্রেড ইউনিয়নের পক্ষ থেকে পেশ করা 13 দফা দাবিকে মান্যতা দিয়ে অনুমোদন করেছেন। সেই অনুমোদনের ফলে বর্তমানে বহু শ্রমিকের নাম নথিভুক্তের কাজ শুরু হয়েছে। কলকাতায় সোমবার ভারতীয় রেলওয়ে মালগুদাম শ্রমিক সংঘের উদ্যোগে এক কার্যকর্তা সম্মেলনের আয়োজন করা হয়। দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ের জোনের এই অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত হন উক্ত শ্রমিক সংঘের ন্যাশনাল ইনচার্জ মনোরঞ্জন কুমার। পাশাপাশি এদিন উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের প্রোগ্রাম কোঅর্ডিনেটর কাশীনাথ গায়েন সহ শানু কর্মকার প্রমুখ বিশিষ্টজনেরা। নিয়ার অ্যাবাউট 62,000 ওয়ার্কার, প্রত্যেকটা গুডসেটে প্রায় 39টা গুডসেট আছে ইস্টার্ন জোনের। এই 39টা গুডসেটে প্রায় 62,000 নিয়ার অ্যাবাউট ওয়ার্কার আমাদের। 39টা আমাদের টোটাল গুডসেট রয়েছে, যেমন বালিগঞ্জ, চিতপুর, নিউ আলিপুর, এরকম 39টা গুডসেট আছে। 39টা গুডসেটে নিয়ার অ্যাবাউট 62,000 ওয়ার্কার গুডসেটে কাজ করার মতো মানুষ রয়েছে পূর্ব রেল ইস্টার্ন জোন কলকাতার আন্ডারে। আর বলুন, বলছি কতজন পশ্চিমবঙ্গে কতজন শ্রমিক এতে উপকৃত হচ্ছে? নিয়ার অ্যাবাউট মানে পশ্চিমবাংলায় যদি বলে যান তাহলে নিয়ার অ্যাবাউট আপনার 1,20,000 থেকে 22,000 মতো ওয়ার্কার। এটা কিভাবে সিলেকশন করছেন আপনারা? এটা আমাদের গুডসেটে, প্রত্যেকটা গুডসেটে যারা কাজ করছে, যত কর্মরত মানুষ আছে, সেইভাবে আমরা গিয়ে যখন ডেটা বেস কালেক্ট করে তাদের পঞ্জীকরণ করাচ্ছি, আমাদের কাছে ডেটাটা এক্স্যাক্টলি চলে আসছে। কখনো দাঁড়াতে পারবে না কোনো সেই জায়গা নেই। অলরেডি কোর্ট বিল পাস করে টোটাল দুটো সাংসদে, যেটা স্যার বললেন, দুটো সাংসদে কোর্ট বিল পাস করে এবং সমস্ত কিছু গভর্নমেন্টের প্রসিডিউর অনুযায়ী এবং এদের হক অধিকার দেওয়ার জন্য 98 থেকে লড়াই করে আজকের অন্তিম চরণে আমরা চলে এসেছি। এটা অত সহজ নয়, কারণ এখানে নিয়ার অ্যাবাউট সারা ভারতবর্ষের 7,85,000 কর্মচারী রয়েছেন। যেমন রয়েছে আমাদের রেলের পাস রয়েছে, মেডিকেল ফেসিলিটিস রয়েছে, ড্রিঙ্কিং ওয়াটার, টয়লেট, বাথরুম রয়েছে। এর পাশাপাশি আমাদের সমান কাজ সমান বেতন রয়েছে, টোটাল এই জায়গাগুলো, এবং ওল্ড এজ পেনশন রয়েছে। आप सभी मीडिया बंधुओं को मैं हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं कि आप समाज के सबसे अंतिम पंक्ति में गुजर बसर करने वाले रेलवे माल गोदाम के श्रमिकों के हक अधिकार के लिए आप इस देश के चौथा स्तंभ हैं। आप इन मजदूरों की बातों को सरकार तक पहुंचाते हैं, समाज तक पहुंचाते हैं, और आज आप इस कार्यक्रम में इतनी तादाद में मीडिया बंधु यहाँ उपस्थित हुए हैं, इसके लिए मैं आपका अभिनंदन करता हूँ। भारतीय रेलवे माल गोदाम श्रमिक संघ एक ऐसा संगठन और इसके संस्थापक आदरणीय श्री अरुण कुमार पासवान जी, जिन्होंने हिंदुस्तान के जो कर्मचारी जो कैजुअल बेसिस में, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस में काम करता है और जिस विभाग में वो काम करता है, उस विभाग के द्वारा उसको नियुक्ति प्रमाण पत्र दिया जाए ताकि उसका रोजगार सुरक्षित होने का काम हो। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ भारत सरकार का, जिन्होंने रेलवे माल गोदाम के श्रमिकों को ऑक्यूपेशनल सेफ्टी कोड बिल में उसको शामिल किए। उसके बाद ये कानून जब लागू हुआ, इसकी हमने बताया आपको कि हमने 2003 में ही सरकार के समक्ष प्रस्ताव रखा था और 2020 में ये प्रस्ताव पारित होकर दोनों सदन से पास हुआ और उसमें रेलवे माल गोदाम के श्रमिकों को विशेष भूमिका दी गई। इसके लिए मैं भारत सरकार का धन्यवाद करता हूँ। दूसरी हमारी बैठक 23 मार्च 2021 को उस समय के वर्तमान श्रम मंत्री श्री संतोष कुमार गंगवार जी की अध्यक्षता में संपन्न हुआ और हमने उस बैठक में मजदूरों की जो समस्याएं थी उसको पुरजोर तरीके से सरकार के समक्ष रखने का काम किया और हमने 13 मांग, जिसमें से मुख्य रूप से समान काम समान वेतन, जिस तरह से एफसीआई के मजदूरों का रेगुलेशन हुआ उनको तमाम सुविधाएं दी जाती है, जिस तरह से पार्सल पोर्टर के मजदूरों को सुविधाएं दी जाती है, उसी तरीके से रेलवे माल गोदाम के श्रमिकों को वो सारी फैसिलिटी प्राप्त हो, इन्हें भी कर्मचारी का रूप में दर्जा प्राप्त हो। हमने 13 मांग इनके लिए रखा और भारत सरकार के श्रम मंत्री जी ने, श्रम मंत्रालय ने हमारी 13 मांग को जायज़ ठहराते हुए उसको श्रम मंत्रालय स्वीकृति प्रदान करने का काम किए और रेल मंत्रालय के जो प्रतिनिधि उपस्थित थे
उन्होंने कहा कि अब जबकि न्यू लेबर कोड आ गया है तो हायर कंपोनेंट अथॉरिटी के माध्यम से जो पॉलिसी मेकिंग का काम है, इन मजदूरों को जो डिमांड हमारे रेलवे के कार्य क्षेत्र में जो आता है उसको हम लोग पारित करने का काम करेंगे। उस बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि पूरे हिंदुस्तान के माल गोदाम के श्रमिकों का पंजीकरण कर उसका डाटाबेस तैयार किया जाए कि भारत में किन किन माल गोदाम में कितने मजदूर हैं जिनको हमको ये सारी फैसिलिटी अवेलेबल कराना है। और 7 तारीख को मैं आपको पत्र भी दिखाना चाहता हूँ, माननीय जगदम्बिका पाल जी के उपस्थिति में यहाँ पंजीकरण उद्घाटन होकर के अभी मुझे लगता है कि बंगाल का 80% हमारा पंजीकरण काम सफल होने का काम हुआ है। दूसरा, हमारा हरियाणा प्रदेश में कार्यक्रम हुआ, वहाँ के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी ने हमारे कार्यक्रम में आके मजदूरों का पंजीकरण उद्घाटन समारोह किया। इसी तरह बिहार, उत्तर प्रदेश, हमारा असम, उत्तराखंड, झारखंड, उड़ीसा, राजस्थान, पूरे हिंदुस्तान के लगभग सभी राज्यों में सरकार का बहुत अभूतपूर्व हमारा साथ मिला है और अभी तक लगभग हम लोग 2.5 लाख रेलवे माल गोदाम के श्रमिकों का पंजीकरण कंप्लीट कर चुके हैं। और भारतीय रेलवे माल गोदाम श्रमिक संघ का ये लक्ष्य है कि हम फरवरी तक में, मार्च के फर्स्ट वीक तक में हम पूरे हिंदुस्तान के एक माल गोदाम के श्रमिकों का पंजीकरण समाप्त कर करके भारत सरकार के समक्ष रेल मंत्रालय और श्रम मंत्रालय के साथ तीसरी त्रिपक्षीय बैठक हमारी मार्च में पुनः होगी और हम डाटाबेस कंप्लीट करके इनका जो वेतन मान के लिए जो हमारा एक नेगोशिएशन होना है भारत सरकार के साथ, उसमें हम लोग उसको जमा करने का कमिंग मार्च। दूसरा, मैं भारत सरकार का बहुत अभिवादन करना चाहता हूं कि उन्होंने 20 दिसंबर को हमारे संगठन के अनुरोध पर कुछ माल गोदामों पर पंजीकरण करने में समस्या उत्पन्न हो रही थी। वहां के रेलवे प्रशासन का साथ नहीं मिल पा रहा था, तो इसके लिए श्रम मंत्रालय ने रेल मंत्रालय के अध्यक्ष महोदय को पत्र लिखा और साथ ही साथ भारत के सभी राज्यों के CLC चीफ लेबर कमिश्नर को भी पत्र लिखा है कि भारतीय रेलवे माल गोदाम श्रमिक संघ को सहयोग प्रदान किया जाए रेलवे प्रशासन के द्वारा और सभी माल गोदाम के श्रमिकों को जल्द से जल्द उनका पंजीकरण संपन्न हो और रेलवे हमारे संगठन के पदाधिकारियों का रेलवे द्वारा सुरक्षा एवं सहयोग भी प्राप्त हो, जैसे उसको प्रोटोकॉल का भी व्यवस्था किया जाए। ভারতীয় রেলওয়ে মালগুদাম শ্রমিক সংঘের সাফল্য আরো এগিয়ে যাবে সরকারি স্বীকৃতিতে পাথেয় করে এবং এতে বহু মানুষের যে উপকার হবে তা সত্যি খুশির। ব্যুরো রিপোর্ট, প্রিয় চিত্রসাথী নিউজ, কলকাতা।